Hello friends, today we start the first chapter, Biology, class 12th, that is sexual reproduction in flowering plants, angiosperms. Only in plant kingdom, angiosperms are the plants. They produce the flowers. Flower is the sexual structure. Flowers are produced by the angiosperms. Angiosperms are the most advanced plants. When we talk about the plant kingdom, algae evolved into bryophytes, then pteridophytes, then gymnosperms and angiosperms. Angiosperms are the only plants. They develop flowers for the reproduction, for the sexual reproduction. Flower is the sexual structure that is produced only by the angiospermic plants. Today, this chapter is sexual reproduction in flowering plants. Is a very lengthy chapter. ये बड़ा चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है. हम एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे. इस चैप्टर 5-7 लेक्चर्स में ये पूरा होगा. पूरा स्ट्रक्चर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड स्ट्रक्चर एंड द whole process of the sex reproduction that we will study, we will discuss. But today, all the structures and processes such as microsporogenesis, megasporogenesis, formation of the male gametes, female gametes, pollination, fertilization, double fertilization, endosperm, embryo, seeds, all the structures related to the sex reproductions that we will discuss in this chapter. Today we will introduce with this chapter with the structure of flower. फ्लोवर बेसिकली प्लांट के जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, प्लांट की बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गन लेवल तक है. प्लांट के अंदर बेसिक ऑर्गन 3 है, एज यू नो, रूट, स्टेम एंड लीव्स. दीज आर 3 बेसिक ऑर्गन्स दैट बियर ए प्लांट. द पोर्शन ऑफ द प्लांट दैट इन द सॉइल, under the soil, that is called root system. And aerial part, aerial portion of plant, stem, branches and leaves. This comprises the shoot system. All other structures are modified structures either of root, stem, leaves. Flower is the modified structure. Flower is the modified shoot. First, we will start the morphology of the flower. फ्लावर का स्ट्रक्चर, फ्लावर मॉडिफाइड सूट है. मॉडिफाइड सूट है, इट मीन्स स्टेम है एंड लीव्स है. तो स्टेम और लीव मॉडिफाइड हुए हैं सेक्स रिप्रोडक्शन के लिए इन द फॉर्म ऑफ द फ्लावर. इस बात थोड़ा अपन समझते हैं मॉडिफिकेशन को. सूट का मॉडिफिकेशन इन फ्लावर.
Flower structure and morphology of flower. फ्लोवर के अंदर ए टिपिकल फ्लोवर a typical flower bears 4 parts. Calyx, corolla, androecium and gynoecium. These are 4 parts: calyx, corolla, androecium and gynoecium. They are arranged in whorls. इस तरीके से ये लीफ की एक्साइल से फ्लोर एक्सिस निकल रही है. इट इज कॉल्ड पेडिसेल. ये पेडिसेल का ऊपर वाला जो सोलर पार्ट है, इट इज कॉल्ड थैलेमस. सबसे आउटर मोस्ट, दीज all parts, the 4 parts, calyx, corolla, androecium and gynoecium, they are arranged in whorls. ये चक्र के अंदर सबसे बाहर वाला चक्र है. सबसे थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे. इसको कहते हैं कैलिक्स और हिंदी बाह्यदल पुंज. कैलिक्स बना हुआ है. इसकी जो यूनिट्स हैं, इकाइयां हैं, इस एक इकाई का नाम है सेपल. बाह्यदल. अब एक पुष्प में कितने एक बाह्यदल पुंज में कितने बाह्यदल होंगे? 4, 5, more than 5, less than 4. सामान्यतः जनरली 4-5 सेपल्स होते हैं, बाह्यदल होते हैं. सेपल की मॉर्फोलॉजिकली स्ट्रक्चर इसका है, लीफ जैसा है. सेपल, बाह्यदल, ग्रीन कलर. इट इज लीफ, इट इज मॉडिफाइड लीफ है बेसिकली ये. और इसका फंक्शन है जब फ्लावर बड स्टेज में, व्हेन फ्लावर इज इन बड स्टेज, सेपल कवर्स द all internal parts of the flower. Means it protect the internal organs of the flower. ये काम है सेपल्स का. नंबर ऑफ सेपल्स जनरली 4 or 5 होते हैं, और मे बी लेस देन 4 or 5 और मोर देन 4 or 5. दूसरा वर्ल है, दूसरा घेरा, जो फ्लावर का सबसे अट्रैक्टिव पार्ट है, कलरफुल पार्ट, दैट इज कॉल्ड कोरोला. दूसरा पार्ट है कोरोला एंड मेड अप ऑफ द पेटल्स. पेटल इज द यूनिट. ये पेटल है, पेटल इज द यूनिट. नंबर ऑफ द पेटल्स generally 4 or 5, maybe less than it, and in some flowers numbers are greater than 4 or 5. Petals are colorful part of the flower. It attracts the insect, helps in the pollination. These two, calyx and corolla, these 2 parts are called accessory parts. Accessory part और accessory organ. accessory organ इसलिए कहते हैं इनको, ये दोनों कैलिक्स एंड कोरोला डायरेक्ट
रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, बट दे एड इन द सेक्स रिप्रोडक्शन, इनका रोल है, बट गैमेट फॉर्मेशन में या डायरेक्ट रोल नहीं इनका, सेक्स रिप्रोडक्शन इनका डायरेक्ट रोल नहीं होता है। थर्ड वर्ल है, उसका नाम है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम इज मेड ऑफ द स्टेमन, स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एंड्रोसियम, एंड्रोएसियम। तीसरा घेरा है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, बना हुआ इसका ये यूनिट है, इसका नाम स्टेमन। ये स्टेमन, स्टेमन दो पार्ट है स्टेमन के, ऊपर फूला हुआ पार्ट है दैट इज कॉल्ड एंथर। एंथर बनाता है माइक्रोस्पोर्स, पोलन ग्रेन्स, और पोलन ग्रेन्स बनाते हैं मेल गैमेट्स। ये सिलेंडर शेप्ड स्टोक है, इट इज कॉल्ड फिलामेंट। ये सब चीजें अपन डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में तो मैं खाली फ्लावर का स्ट्रक्चर क्या है, मॉर्फोलॉजी की क्या है, दैट वी डिस्कस, दैट आई डिस्क्राइब। तो एंड्रोसियम इज द थर्ड वर्ड from the outside. Outermost is the calyx, then corolla, and next is the endoecium. It is the male reproductive part of the flower. It is composed of the stamen. Stamen is the male reproductive organ. It produces the male gametes. The innermost world is made of the pistil or carpel. It is pistil or carpel. पिस्टल भी कहते हैं बेटे, और कार्पल भी नाम से, कार्पल। इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड दिस गाइनोसियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब नंबर ऑफ द कार्पल मे बी वन, मोर देन वन, मे बी फ्री, मे बी फ्यूज्ड। पिस्टल में 3 पार्ट होते हैं, नीचे फूला हुआ सोलन पार्ट है, इट इज कॉल्ड ओवरी। बीच वाला ये सिलेंडर शेप्ड है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इट इज कॉल्ड स्टाइल। एंड ऊपर ये डिस्क शेप पार्ट है, इट इज कॉल्ड स्टिग्मा। यहाँ पोलन ग्रेन आते हैं, इट इज लैंडिंग साइड फॉर द पोलन ग्रेन। ये बेसिक स्ट्रक्चर है फ्लावर का, एक टिपिकल फ्लावर का। अब फ्लावर ही कंप्लीट फ्लावर है। कंप्लीट मीन्स इट हैविंग ऑल द 4 पार्ट्स। कैलिक्स भी है, कोरोला भी है, एंड्रोसियम भी है, गाइनोसियम भी है, चारों पार्ट है। इट मीन्स दिस फ्लोर इज कंप्लीट। अब मान लो 3 पार्ट है, अगर 2 पार्ट है तो फ्लोर कहलाएगा इनकम्प्लीट, कंप्लीट। अब कंप्लीट फ्लोवर है इसके पास। इस कंप्लीट फ्लोवर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टेमन भी है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कार्पल भी है, स्पिसिल भी है। तो ऐसा फ्लोर कहते हैं बाइसेक्सुअल। ये फ्लोर है बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट, 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 बाइसेक्सुअल हर्माफ्रोडाइट फ्लोवर। अब ऐसा फ्लोवर जिसके अंदर खाली एंड्रोसियम है और गाइनोसियम नहीं है, सीधी सी बात है, वो फ्लोवर क्या बनाएगा, मेल गैमेट बनाएगा। वो फ्लोवर क्या कहलाएगा, मेल फ्लोवर कहलाएगा। उसका स्टेमन है, तो मेल फ्लोवर, मेल फ्लोवर, इसको कहते हैं स्टेमिनेट, स्टेमिनेट फ्लोवर, स्टेमिनेट फ्लोवर। इट इज लेकिंग द पिस्टल, इसके पास पिस्टल नहीं, गाइनोसियम नहीं है। इट इज यूनिसेक्सुअल फ्लोवर। Unisexual flower, either it may be male or may be female. It bears carpel, it means it is female flower lacking the endoecium. जब ये फीमेल फ्लावर है तो उसके पास क्या है, कार्पल है। कार्पल है तो फीमेल गैमेट बनाएगा। सर उसको कहेंगे हम पिस्टिलेट फ्लावर। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर, hermaphrodite, unisexual, staminate,
may be staminate, may be pistillate. Now we come on the morphology of the flower. Flower is basically modified shoot. ये मॉडिफाइड सूट है. मॉडिफाइड सूट ये है, सूट का मॉडिफिकेशन हुआ और ये स्ट्रक्चर बन गया फॉर द सेक्स रिप्रोडक्शन. अब ये मॉडिफाइड सूट, इसको हम क्यों कह रहे हैं, इस बात को मैं अभी समझाता हूं आपको. स्टेम के अंदर, स्टेम रूट से डिफरेंट है. एंड द मोस्ट डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर ऑफ द स्टेम इज दैट stem bears the nodes and internodes. Whereas roots lack the nodes and internodes. तने के अंदर नोड और इंटरनोड होती है, जबकि रूट में नोड इंटरनोड नहीं होते हैं. नोड इंटरनोड क्या है? सिंपल सा कंसेप्ट है. ये स्टेम है, दिस इज स्टेम. यहां लग रही है लीफ, ये लीफ लग रही है, यहां लीफ, यहां लग रही है लीफ, यहां लग रही है लीफ. यहां से लीफ एराइज हो रही है, यहां से लीफ पत्ती निकल रही है, पत्ती में से निकल नोड से. दैट पोर्शन इज कॉल्ड नोड. दैट पोर्शन ऑफ द स्टेम इज कॉल्ड नोड. नोड से निकलती है लीफ. नोड में होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. दिस पोर्शन इज कंपोज्ड ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, हेंस इट इज कैपेबल टू प्रोड्यूस द लीफ. लीफ, लीफ के एग्जाम्पल में होती है बर्ड. बर्ड इज ए ग्रुप ऑफ, ये बर्ड, एक्चुअली बर्ड. इस बर्ड से ब्रांच बन सकती है, अनदर लीफ बन सकती है. ये बर्ड अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है. इसमें कैपेसिटी है, इट इज, दिस बर्ड इज कैपेबल टू प्रोड्यूस, हेंस the branch can arise from this bird, leaf can arise from this bird, the flower axis can arise from this bird. अब इस बर्ड से ब्रांच नहीं बनकर ये निकला, एक्सिस निकली एक, ये एक्सिस निकली, एक्सिस, ये एक्सिस आगे चल के क्या कर रही है, इट बियर्स द फ्लावर. इस एक्सिस, ये एक्सिस क्या करेगी, आगे चलकर फ्लावर बियर करेगी, फ्लोर में मॉडिफाइड हो जाएगी. अब कैसे, ये देखो आप, यहाँ से ये है नोड, ये दूसरी नोड, ये तीसरी, ये चौथी, ये नोड, ये नोड. अब जहाँ से निकले सबसे ये वाली, ये पोर्शन, इस एक्सिस का, दिस पोर्शन इज सोलन पार्ट, दिस इज कॉल्ड थैलेमस. इसको कहते हैं थैलेमस. थैलेमस, थैलेमस की जो सबसे नीचे वाली नोड है, यहाँ से ये स्ट्रक्चर आया बाहर. अब ये मैंने दो बनाई है, दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है. ये बेसिकली क्या है, सेपल है. ये बन गया सेपल, बादल, इट इज लीफ लाइक स्ट्रक्चर. लीफ का मॉडिफिकेशन है, मॉडिफाइड है. हालांकि ये ग्रीन है और फोटोसिंथेसिस का फंक्शन भी कर रही है, ये सेपल कर रहा है, पर इसका मेन फंक्शन है प्रोटेक्शन. मैंने लेक्चर के शुरू में बताया था, सेपल बाह्यदल पुंज का जो कैलिक्स पूरे इस पार्ट का काम क्या है, इट कवर्स द इंटरनल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर व्हेन फ्लावर इज इन बड स्टेज फॉर द प्रोटेक्शन. तो इसका मेन काम प्रोटेक्शन का है. वैसे ये ग्रीन है, सेपल्स जनरली ग्रीन होते हैं. सेपल्स आर जनरली ग्रीन्स एंड दे आल्सो
फोटोसिंथेसाइज। अब ये मॉडिफिकेशन लीफ का है, तो ये स्टेम का मॉडिफिकेशन, ये लीफ का मॉडिफिकेशन। अब दूसरा दो दिख रहे हैं, ये 2 डायमेंशनल फिगर है, और 3 डायमेंशन में देखेंगे तो इधर भी आ जाएगी, उधर भी निकल जाएंगे, मेरे आगे पीछे यूँ। ये दूसरी लोड है, यहाँ निकल गई दूसरा मॉडिफिकेशन है लीफ। ये लीफ, ये बेसिकली ये लीफ का, ये इससे बन गया। ये लीफ मॉडिफाइड होगी पेटल्स में, किसमें मॉडिफाइड, पेटल में। ये तीसरी लोड है, ये लीफ मॉडिफाइड होगी इस स्ट्रक्चर में, स्टेमन में। ये हो गई चौथी वाली नोड पे निकल गया, ये हो गया ये ओवरी, ये स्टाइल और स्टिग्मा, ये हो गया। तो 1 2 3 4 कैलिस, कोरोला, एंडोसिम, गाइनोसिम। अब ये सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड कार्पल्स, these all structures are formed by the modification of the leaves, and these leaves arise from the nodes of the thalamus. What is thalamus? Thalamus is the swollen tip of the flower axis. What is flower axis? Flower axis is nothing, it is pedicel stole structure, it is the modified stem. Hence, अब ये थोड़ा फ्लोर जैसा लुक नहीं आ रहा है। होता क्या है इसमें, ये जो है ये थैलेमस है, इस थैलेमस में जो नोड्स हैं, दीज नोड्स आर कंडेंस्ड, पास है। अब ये यूं है, पास है, पास है। अब नाउ यू कैन इजीली ड्रॉ द डायग्राम दिस वे। नाउ इट इज क्लियरली लुक्स लाइक द फ्लावर। अब ये फ्लोर ऐसा लगता है, तो ये कंप्लीट फ्लोर बन गया। अब देखिए ये स्टेम, ये लीव्स, ये मॉडिफिकेशन। तो वी कैन से दैट फ्लावर मॉर्फोलॉजिकली फ्लावर इज द मॉडिफाइड सूट। फ्लावर मॉडिफाइड सूट है, और एक किसमें बनता है, केवल एंजियोस्पर्म प्लांट्स डेवलप करते हैं। फ्लावर्स आर प्रोड्यूस्ड ओनली बाय द एंजियोस्पर्म्स, एंड इट इज द सेक्सुअल reproductive structure, produces the male gametes and female gametes. Further, this is all about the structure of the flower. And tomorrow, in next lecture, we will discuss the microsporogenesis, the formation of the male gametes. Thanks. थोड़े दिन घट